notes will be forwarded to you. In the meantime, let's see page by page so that this will be very important for you and it will be of good use for your listening. So we'll have a small video upon the same. We are in the third unit now. Let's go to the third unit slowly and how we have been dealing with this our class. I expect more people to be present in coming days. So suppose you are more in number, it's very happy for us to see that you are all encouragingly listening to my class. So this is how we are going off the first unit. We have all went to the first unit, operational strategy, strategy and management tools, willingness to change, of course. Unless and until there is a willingness to change, courses will not be in a position to do wonders in your strategic analysis, which we are told in the last few classes. Strategic analysis, how do you analyze what is strategy and how do you analyze this thing? This is what we are reading this first classes. It's almost we are in the what you call 10th class. 10 classes we have been completed. And we are in the third unit now. And let's go to the final part of the third unit as we go on with this. And role of strategic analysis in policy making is one more subject that's of very use for us. So most of the people are present, and now I think all of you are present. Now I think I can go ahead with my class now. So in this class is also being recorded, and then we'll go to the third unit whereby you can. This is the third unit. We are where we are. Strategic formulations. Yesterday we had a video on this thing. All these things we have completed, and all these types of strategies we have done this, and objectives of strategies we have done, strategic formulations we have done, strategic implementations we have done, and strategic evaluation and control. This is what we have done in the last classes. We'll have a small video on this if possible, so that will cover most of the part of your. What is Bittrex 24? Free task management, free time tracking, free quotes and invoices. Bittrex 24, the #1 free तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, मतलब एक स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कितनी टेक्निक्स अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 4 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी का प्रोसेस पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रैटेजी को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो इसका जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या था इस वीडियो में, जिससे इस वीडियो में आपको हेल्प मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम लोग चाहते हैं एक स्ट्रैटेजी से। अब फिर हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारा स्ट्रैटेजी हमें दे के देता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं कि हम लोग कितना परफॉर्म कर पाए। हम लोग अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। फिर आता है हमारा कंपेयर एक्चुअल वर्क वर्सेस स्टैंडर्ड, मतलब जो भी स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट किया था उससे हम लोग अपने एक्चुअल वर्क जो हम लोगों ने मेज़र किया परफॉर्मेंस में उससे कंपेयर करते हैं। फिर जो डेविएशन आता है फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं डेविएशन कि कितना अंतर रह गया, और अगर वो जो अंतर है वो लिमिट में रहता है, हम लोगों ने 10 लाख एज्यूम किया था सेल्स बढ़ेगा लेकिन 9,80,000 बढ़ा, तो ये विद इन लिमिट है, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम किया था 15 लाख सेल होंगे और आया सिर्फ सेल 10 लाख, तो अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया है। तो हम लोग एक करेक्टिव एक्शन लेंगे कि हम लोगों के स्ट्रैटेजी में गलती कहाँ हो गई। हम लोगों ने ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था या हम लोगों का जो एक्चुअल वर्क था उसी में गलती हुई है। ओके, तो ये होता है एक स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस।
ओके, तो हम लोग अपने इस वीडियो पे आते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो अब कौन कौन से टेक्निक अवेलेबल है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी हमारी सक्सेसफुल थी या नहीं थी। ओके, सबसे पहला आता है गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस क्या करता है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक विच कैन आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द एक्चुअल अचीव परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी कि इतना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हम लोगों का होना चाहिए, और हम लोगों ने इतना ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, ये हमारा मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो गैप एनालिसिस हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि इन दोनों में हमारे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में कितना का अंतर रह गया। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे बिजनेस टूल्स होते हैं या रेशियो एनालिसिस के मदद से हम लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में कितना का गैप रह गया। ओके, तो अब सेकंड टेक्निक आता है किसी भी स्ट्रेटजी को इवेलुएट करने का, वो आता है स्वॉट एनालिसिस। ये क्या बताता है, इससे हम लोग कैसे हेल्प करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग तो सबको पता ही होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके, तो ये क्या बताता है, द इवेल्युएशन सिस्टम शुड एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट फॉर इफेक्टिवली एप्लीकेबल बिजनेस रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो स्वॉट एनालिसिस क्या बताता है, हमारा स्वॉट एनालिसिस बताता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर दो, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट है, इन सभी को कंसीडर करो और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। ओके, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं, उनके हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। ओके, तो अगर अगर हम लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर हम लोग वीकनेस के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम लोगों को क्या थ्रेट आ सकता है, राइट। तो हम लोग को डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए स्वॉट एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, जिससे हम लोग अपने इसको 4 भाग में बांट देते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में, और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, थर्ड क्या आता है हमारा, पेस्ट एनालिसिस। ये क्या होता है, एक पेस्टल एनालिसिस भी होता है। वो होता है, पहले पेस्ट का बताता हूँ मीनिंग, फुल फॉर्म। पेस्ट आता है पॉलिटिकल, फिर फिर आता है इकोनॉमिक, फिर आता है सोशल, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। इसमें 3 और आ जाते हैं, ई एल और आ जाते हैं पेस्टल एनालिसिस में। ई आ जाता है एनवायरमेंटल, टी आ जाता है टेक्नोलॉजिकल। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ पेस्ट का एग्जांपल से समझेंगे। ये एक टेक्निक है स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करने में। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक यूज फॉर इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटेजी। मतलब हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके सिस्टम को ये इवेलुएट करती है। ओके, पेस्ट एनालिसिस। The business atmosphere is highly sensitive and complex in nature. Pest denotes political, economic, social, technological factor directly impacted on the business. मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये 4 भाग में सबसे पहले डिवाइड करती है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, और उसके हिसाब से बोलती है स्ट्रैटेजी बनाओ जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल के फेवर में रहकर बन पाए, जिससे हम लोग इफेक्टिवली अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। ओके, तो पेस्ट एनालिसिस क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। और ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये बिजनेस का जो एटमॉस्फेयर है उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है, जिससे हम लोग सक्सेसफुली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, फिर क्या आता है, बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग क्या होता है, इट इज़ टेक्निक ऑफ स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट। तो ये गैप एनालिसिस के जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बना के रखी थी कि हम लोग इतना इतना हम लोगों का सेल्स होगा, इतना ये परफॉर्मेंस हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था,
तो बेंचमार्किंग क्या करता है, जो स्टैंडर्ड बेंच जो सेट कर देता है स्टैंडर्ड, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है बेंचमार्किंग में, जिससे हम लोगों को पता चल पाए कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड हमारा परफॉर्मेंस मार्जिन था, उससे हम लोग कितना पीछे रह गए, या हम लोग कैसे उसको पूरा कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं। ओके, तो ये बताता है हमारा कौन, बेंच मार्किंग। ओके, तो इफ इट इज फेल टू अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो अगर हम लोगों ने अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट उतना नहीं कर पाए, तो कितना का डिफरेंस रह गया हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट में और हमारा एक्चुअल रिजल्ट में, जो हम लोगों ने सोचा था और जो हम लोगों ने एक्चुअली किया है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस रह गया। ओके, फिर क्या आता है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉर बेंचमार्क फॉर बेंचमार्किंग टू मेजर परफॉर्मेंस एक्चुअल टू मेजर परफॉर्मेंस। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, बेंचमार्क एक सेट करना चाहिए जिससे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसे कंपेयर कर पाए और परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। तो ये 4 टेक्निक थी किसी भी स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करने की। एक रफली मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। गैप एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और जो हम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट आया है, इन दोनों में कितना गैप है। अगर गैप कम है तो हमारा स्ट्रैटेजी काम हुआ, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो हम लोग का स्ट्रैटेजी में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस क्या करता है, ये हम लोगों को एक अच्छा स्ट्रैटेजी को चूज़ करने में हेल्प करता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के माध्यम से। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि तुम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो जिससे हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिल पाए मार्केट में। ओके, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा पेस्ट एनालिसिस, जिसमें ये भी हेल्प करता है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये इन चारों पॉइंट को कंसीडर करता है और उनके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी को फ्रेम करता है। ओके, फिर आता है बेंचमार्किंग, जिसमें हम लोग जो गैप एनालिसिस से काफ़ी मिलता जुलता है, जो हम लोगों का स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया था उस पे हम लोगों ने कितना एक्चुअली अचीव कर पाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा मार्जिन है, इन दोनों में कितना मार्जिन रह गया हमारे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। तो और ऑर्गेनाइजेशन को बेंच एक सेट रखना। So this is the video which have been projected to you telling of the strategic management, and it's a wonderful presentation. Though this is in Hindi, a part of in Hindi, so we have to follow in this Hindi because we are very much confident that my all three students have already passed the 10th class, so you should be knowing Hindi. Hindi भी आपको जानना चाहिए. You guys know you know Hindi very well. You can understand the wording there, and our remaining part is said in English. And I hope you have enjoyed this class. And this strategic management is a very, very important subject for you. And there will be a definite question on this part of your business sectors. Thank you for presenting to my class, coming to this, and thank you. This recording I will be forwarding to you. And whenever it's possible for you, you can listen to this, and the links are also followed. Thank you very much.